السلام علیکم. آج 9 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصباح لقاری. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلٹن کا آغاز کرتے ہیں. آج کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کیا گیا. کارکنوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا دیا. پولیس نے ریڈ زون سے منتشر کرنے کے لیے شیلنگ اور لاٹھی چارج کر دیا. کئی کارکن زخمی ہو گئے. پولیس ایکشن کے بعد کارکن اور رہنما منتشر ہو گئے. کراچی میں ایم کیو ایم کی جانب سے سندھ کے نئے بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کیا گیا. شہر بھر سے کارکن ریلیوں کی صورت میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے اور دھرنا دیا. ریلی کی قیادت امین الحق، وسیم اختر اور عامر خان نے کی. مظاہرین سے افسران نے مذاکرات بھی کیے. مذاکرات ناکام ہونے پر پولیس کی جانب سے شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا. آنسو گیس سے دھرنے میں شامل کارکنوں کی طبیعت خراب ہو گئی. مشتعل مظاہرین نے بھی پولیس پر پتھراؤ کیا. پولیس کے لاٹھی چارج کے بعد تمام کارکن اور رہنما منتشر ہو گئے. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کل یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سندھ فی الفور مستعفی ہو. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. وزیر اعظم کو فوری کراچی آنا چاہیے. کل یہ شہر یوم سیاہ منا رہا ہے تاکہ اس سیاہی کو اس شہر کے لوگ پوری دنیا کو دکھا سکیں. وزیر اعظم صاحب، ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس واقعے پر اگر کراچی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کو یہاں آنا چاہیے. وزیر اعلیٰ استعفا دے، ورنہ یہ شہر پہ اس کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں. اپنے اس آئی جی کو معطل کریں. ڈی آئی جی کو سندھ گورنمنٹ کے ذریعے معطل کرایا جائے. ایم کیو ایم کے احتجاج اور لاٹھی چارج پر مزید بات کریں گے ترجمان سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سے. مرتضی وہاب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ آج کراچی میں جو کچھ بھی ہوا اس پر کیا کہیں گے آپ؟ پیپلز پارٹی ہر سیاسی جماعت کے جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے اس کا احترام کرتی ہے، اور اس کی بہترین مثال آپ کو جماعت اسلامی کا دھرنا نظر آتا ہے کہ وہ لوگ اتنے روز سے بیٹھے ہیں، روز برا بھلا کہتے ہیں سندھ حکومت کو، لیکن کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی گئی. آج جب متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی دھرنے کا اعلان کیا یا اپنی اس مارچ کا اعلان کیا، تو کراچی کی انتظامیہ نے، ایڈمنسٹریشن نے ان کے ساتھ انگیج کیا. ان کو بتایا کہ شارع فیصل کو آپ بلاک نہیں کر سکتے ہیں. یہ ان سڑکوں میں سے ایک ہے جس کو ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہوگا ان سڑکوں کو بلاک کرنے کا. متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت نے کراچی کی انتظامیہ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ پرامن طریقے سے کراچی پریس کلب جائیں گے. بدقسمتی کے ساتھ پریس کلب نہیں پہنچے اور انہوں نے پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس کا رخ کیا. اور یہ بغض پیپلز پارٹی میں یا بغض سندھ حکومت میں یہ بیسیکلی ایک اور سازش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے برابر میں جو 2 ہوٹلز ہیں وہاں پر بین الاقوامی کرکٹرز ٹیمز ٹھہری ہوئی ہیں جو کہ پی ایس ایل کے سلسلے میں کراچی شہر آئے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ سازش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے کراچی کا برا تاثر دنیا بھر میں اجاگر کیا جائے. یہ تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے رویے کے حوالے سے کہ کمٹمنٹ جب ان لوگوں نے کی تھی پریس کلب جانے کی، انہوں نے کیوں ان ہوٹلز کا رخ کیا. مرتضی وہاب صاحب، پی ایس پی جو ہے وہ بھی ایک طریقے سے پروٹیسٹ کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے اس بلدیاتی قانون کے اوپر. آپ اندازہ کریں جب آج یہ صورتحال ہے اور جب بلدیاتی انتخابات اگر آپ نے کرا دیے بغیر ان کے خدشات کو دور کیے تو کیا خون ریزی ہوگی؟
इनको ये समझने की जरूरत है कानून साजी करना सड़क पर बैठ के आपका काम नहीं है। कानून साजी का इख्तियार आपकी मुताल्लिका असेंबलियों को, अगर असेंबली कोई कानून पास करती है उसका तरीकेकार है आपको फॉलो करने का। ये एहतजाज पंजाब में क्यों नहीं करते, ये एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करते, ये एहतजाज इस्लामाबाद में क्यों नहीं करते? नहीं, तो इसमें आप इंगेज नहीं करेंगे क्या? क्या एक खत्मी वो होगा पीपल्स पार्टी का? हम हर सियासी जमात के साथ इंगेज करने को तैयार हैं। हमने माजी में भी इंगेज किया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ भी इंगेज किया इस कानून के हवाले से। लेकिन आप मुझे बताएं, आप कैसे इन लोगों का भरोसा कर सकते हैं कि जब इन्होंने कराची की इंतजामिया के साथ इंगेज किया और यकीन दहानी कराई कि ये प्रोटेस्ट करने के लिए प्रेस क्लब जाएंगे, और उस यकीन दहानी के बावजूद ये रुख करते हैं उन 2 प्राइवेट होटल्स का, वजीर आला हाउस का, तो आप कैसे इनकी यकीन दहानियों का भरोसा कर सकते हैं? ये प्रॉब्लम है। इनका बुनियादी मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से जो कराची के अंदर एक देरपा अमन की एक अच्छी सिचुएशन कायम की गई है उसको किसी न किसी तरीके से खराब किया जाए। बहुत शुक्रिया मुर्तजा वहाब साहब आपके वक्त का। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वजीर बल्दिया नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि एमक्यूएम ने प्रेस क्लब जाना था, अचानक सीएम हाउस जाने लगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वहां सिर्फ सीएम हाउस नहीं 2 5 स्टार होटल भी हैं जिनमें पीएसएल के खिलाड़ी रिहाइश पजीर हैं। आज उनका प्रोग्राम था प्रेस क्लब पे जाने का, लेकिन वो प्रेस क्लब की बजाय सीएम हाउस के आगे आ गए। और वहाँ सिर्फ सीएम हाउस नहीं है, 2 5 स्टार होटल्स भी हैं जिसमें पीएसएल के इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो आके ठहरे हुए हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। हमारी तो बात उनके साथ हो रही थी, लेकिन जाहिर है इंतजामी इश्यूज थे जिस पर ये कार्रवाई हुई है। और अगर किसी ने ज्यादती की है पुलिस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो उन पर जरूर एक्शन होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एमक्यूएम देर से बेदार हुई। जमात इस्लामी के धरने के बाद सिंध की अपोजिशन जमातों को होश आया है। आज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 28 दिन से एहतजाज पर हैं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आई। एमक्यूएम बहुत देर से बेदार हुई। काश के ये पहले एक्टिविटी करते तो उसके नतीजे में ये मसला ज्यादा हाईलाइट हो जाता। ठीक। लेकिन 2013 में जब ये एक्ट आया तो एमक्यूएम इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी के, 80% इख्तियारात तो वहीं छिन गए और 1 साल बाद तक वो इत्तेहादी रही और उसके बाद भी उसने कोई रोल प्ले नहीं किया। जो इतनी बड़ी ताकत थी कि अपनी मर्जी से शहर खोलते और बंद करते थे। अब भी ये एमक्यूएम के पास 22 एमपीए हैं और 30 पीटीआई के पास है। 52 एमपीए होने वाली है। तकरीबन कराची का 80-90% बेडेड इन 2 जमातों के पास। कुछ नहीं किया इन्होंने 1.5 महीने। 1 हफ्ता पहले हमारे धरने के बाद जब ये हाईलाइट हुआ तो इन्होंने तीनों ने मिलकर जो है वो एक प्रोग्राम किया। आज भी इन्होंने अनाउंस करके सीएम हाउस नहीं गए। काश के ये चीजों को अपने मैनेज करें और ठीक तरीके से चल रहे होते तो ज्वाइंट भी कोई चीज बन सकती थी। लेकिन ये धरना मौजूद है, कुछ पार्टियां आई भी है, इनको आना चाहिए था। तो पुरतशद्दुद तो किसी चीज में हम नहीं जाएंगे। हम पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं और ये मसला अब इस तरह से पेनिट्रेट कर गया है कि ये पीपल्स पार्टी को हल करना पड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब कहते हैं कि सिंध हुकूमत के एमक्यूएम के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस गर्दी की मजम्मत करते हैं। नाम निहाद जमहूरियत के दावेदार पीपल्स पार्टी का आमराना चेहरा बेनकाब हो गया है। ट्वीट में लिखा कि बिलावल और जरदारी ताकत के जोर पर बल्दियात के काले कानून के खिलाफ आवाज दबाना चाहते हैं। ताकत के जोर पर काला कानून लागू करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध के बल्दियाती निजाम के खिलाफ जो भी जमात सड़कों पर निकलेगी पीटीआई उसकी हिमायत करेगी। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी का बल्दियाती कानून अवाम दुश्मन है। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। मैं समझता हूँ कि ये काले कानून के खिलाफ जो ये निकले हैं, हम समझ सकते हैं कि इसके ऊपर हमारी हिमायत हासिल है। हम सबकी हिमायत करेंगे। जो भी बाहर निकलेगा, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। मैं समझता हूँ कि इनका यही इलाज है और सीएम हाउस है कोई ऐसी जगह तो नहीं, कोई नहीं जा सकता यहाँ। पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पे इस कानून को वापस लेना चाहिए और जब ये वापस ले लेते हैं तो हम फिर बैठ के बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इसको अल्टीमेटली इन्हें इस कानून को वापस लेना पड़ेगा क्योंकि अवाम दुश्मन है, सिंध दुश्मन है, कराची दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है। बातचीत की जगह होती है असेंबली। सिंध असेंबली में उन्होंने बहस ही नहीं कराई है। जहाँ बहस होनी थी वहाँ बहस हुई नहीं है। अब क्या हम इनसे कहाँ जाके मिले, किस सिस्टम में जाके मिले, किसके जरिए मिले, क्यों मिले? जो जगह थी वो तो इन्होंने बात की नहीं है।
कराची में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियों के बायस शहर में बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। दिन भर शारा फैसल, एमिजिना रोड, आईए चंडीगढ़ रोड, गार्डन, लिस्बेला, गुरुमंदिर, लियाकताबाद और मुल्हिका इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जाम के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। दफातर जाने और वापस घर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंसी रही और मरीजों की हालत गैर होती रही। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के एहलकार सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशें करते रहे। कराची में रैलियों की वजह से शहरी अजाब में मुब्तला रहे। ट्रैफिक जैम में फंसे शहरियों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ये पूरा घूमते हुए आ रहा हूँ, आधा घंटा हो गया। ट्रैफिक के जाम होगा, साफ जाहिर है धरने की वजह से जाम तो है। पीछे तो तकरीबन पाक कॉलोनी से तकरीबन यहाँ तक आता है तो मेरे को 1.5 घंटा हो जाता है। यार बहुत ट्रैफिक के अंदर फंसे पड़े हुए, हम तो खुद एटलीस्ट 1 घंटे से ज्यादा हो गया। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो कराची समेत मुल्क भर में कोरोना के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब रैलियां, एहतजाजी मुजाहरे और जलसे भी जोरों पर हैं, जो कोरोना को फैलाने का बाइस बन रहे हैं। कोरोना की 5वीं लहर, कराची समेत मुल्क भर में केसेस में मुसलसल इजाफा, लेकिन दूसरी जानिब सियासी रहनुमा, कारकुन एनसीओसी की जानिब से कोरोना एसओपीज हवा में उड़ा रहे हैं। किसी भी रैली और एहतजाजी मुजाहरे में एसओपीज पर अमल नहीं होता, न ही कारकुन मास्क पहनते हैं, न ही रहनुमा। समाजी फासले का भी ख्याल किसी को नहीं। आवाम के लिए तफरीह पार्क समेत शादी हॉल बंद हैं। मसाजिद में भी समाजी फासले की सख्ती है, लेकिन सियासी रैलियों में हर खिलाफ वर्जी को अपना हक समझा जाता है। क्या इन रैलियों और जलसों से कोरोना नहीं फैलेगा? एमक्यूएम एहतजाज करती वजीर आला हाउस पहुंची तो वजीर आला सिंध अस्पताल पहुंच गए। मुराद अली शाह अचानक दिल की तकलीफ के बाइस NICVD पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया। तर्जुमान वजीर आला के मुताबिक सैयद मुराद अली शाह ने रूटीन का चेकअप करवाया। वजीर आला सिंध बिल्कुल ठीक है और अपने घर से तमाम उमूर देख रही हैं। और अब बात वज़ीर आज़म की, तो वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि दुनिया में बरतानिया का हेल्थ सिस्टम सबसे अच्छा है। हमारा हेल्थ का सिस्टम बरतानिया से भी आगे निकल गया। पाकिस्तान में सिस्टम सिर्फ अशराफिया के लिए बन गया था। बाहर जाकर इलाज कराने वालों को अवाम की हालत का कोई अंदाजा नहीं। जितनी मुहिम बुज़दार के खिलाफ चली, किसी और वज़ीर आला के खिलाफ नहीं चली। सर्वे में उस्मान बुज़दार सबसे कामयाब वज़ीर आला साबित हुए। जो बरतानिया का जो सबसे अच्छा नेशनल हेल्थ सर्विस गिनी जाती थी दुनिया में, हेल्थ सिस्टम, मैंने तो वो बड़ा करीब से देखा हुआ है। लेकिन ये जो है ये उससे भी आगे निकल गई है। शायद ही दुनिया में किसी मुल्क में इतना एम्बिशियस प्रोग्राम किसी ने किया। शायद आपको भी पूरी तरह नहीं पता कि कितना बड़ा स्टेप लिया है। सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में बन गया एलीट के लिए। अच्छा इलाज चाहिए, पैसे चाहिए। गरीब है वो बेचारा ठोकरें खाता फिरे। थोड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल उस तबके के लिए, और अगर आप ज्यादा अपने मुल्क को पैसा लूट लिया तो आप बाहर जाके अपने टेस्ट भी बाहर करवाते हैं। बाकी अवाम की किसी को फिक्र ही नहीं है। इतनी कैंपेन चलाई गई, इतनी उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी। लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इसका सबूत है। इमरान नियाजी ने करप्शन में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बयान में कहा कि इमरान नियाजी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए मोहलिक तरीन साबित हुए। मईशत तबाह, महंगाई और बेरोजगारी आसमान पर पहुंच चुकी है। इमरान नियाजी को अपने झूठे इमेज को बचाने की फिक्र पड़ी हुई है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का वन विंडो ऑपरेशन है। और अब बात करते हैं वजीर दाखिला की, तो वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। मौलाना फजल रहमान के वजीर आजम को मक्खी की तरह निकालने की बात गैर जिम्मेदाराना थी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 23 मार्च को इस्लामाबाद आने का शौक पूरा कर लें, ये जलील और ख्वार होकर वापस जाएंगे। इमरान सड़कों पर आया तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इमरान खान के और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। फजल रहमान साहब ने बड़ी तकब्बर की बात की है, गैर जिम्मेदाराना बात की है कि हम मक्खी की तरह निकाल देंगे इमरान खान को। अपनी तरफ देखें आप, अगर ये मीडिया ना हो तो आपका नाम भी कौम भूल जाए। अब आप 23 को ही आए,
अब आगे पीछे ना हो। 23 को आए इंशाअल्लाह ताला आप सियासी शिकस्त खाएंगे। 23 मार्च को भी आप जलीलो ख्वार होंगे और अपने सा मुंह लेके वापस जाएंगे। इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पे आऊंगा तो बहुत खतरनाक होगा, आप यकीन जाने वाकई वो बहुत खतरनाक होगा। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्की सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात से कबल वजीर आजम हाउस में वजीर आजम की ज़ेरे सदारत दौरे चीन के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ, आर्मी चीफ मुआविन खुसूसी सीपैक खालिद मंसूर और सीनियर अफसरान शरीक हुए। वजीर आजम को दौरे चीन के दौरान सरमायाकारी, तिजारत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बरामदात के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए ठोस मंसूबों पर चीनी हुक्काम से जारी गुफ्तगू पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि इन्हें नहीं मालूम कीमतें कब नीचे आएंगी। तनख्वाहदार तबका तकलीफ में है, इसकी आमदन को बढ़ाएंगे। मईशत को बहरान से निकालने के लिए IMF के पास गए, लेकिन IMF ने सख्त शराइत मुसल्लत की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि IMF ने हमारी दरखास्त पर एग्जीक्यूटिव वोट का इजलास 2 फरवरी तक मौखर किया है और उम्मीद है कि इस दौरान तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर करवा लेंगे। हमें ये नहीं मालूम कि ये जो इस वक्त सुपर साइकिल कमोडिटीज का है ये कब नीचे आएगा। हो सकता है कि ये सुपर साइकिल जो है अगले 2-3 महीने में नीचे ना आए, तो हम ये कोशिश करेंगे कि अपने सारे जो हमारे सेगमेंट से सोसाइटी हैं उनके लिए उनकी इनकम बढ़ाएं। इस हुकूमत ने 4 डिफरेंट क्राइसिस जो हैं वो फेस किए। पहला क्राइसिस तो था करंट अकाउंट का डेफिसिट था, 8 से 9 अरब रुपए की पेमेंट्स करनी थी। उस वक्त तायन हुआ कि ये तो इस तरह काम नहीं चलेगा, तो IMF के पास चले गए और IMF ने एक सख्त प्रोग्राम दिया और प्रायर कंडीशंस काफी लगाई। हमने रिक्वेस्ट किया था बिकॉज वरना तो आज की डेट जो है उसमें बुध की डेट को ये हमें सेनेट से पास करवा देनी चाहिए थी, जो कि इस वक्त मुमकिन नजर नहीं आ रही थी। तो हमने उनको ये कहा कि चंद दिन हमें और दे दें, तो उन्होंने हमें 2 तारीख तक आप कर लें। तो हमारे पास अब चंद दिन है, इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में हम सेनेट में इसको लेके जा रहे हैं। नैब ने अपने कयाम से अब तक 821 अरब रुपए की रिकवरी की है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में आगाह कर दिया गया 811 अरब रुपए विफाक और सूबाई हुकूमतों, महकमों और मुतासरीन को वापस कर दिए गए। राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में DG नैब हसनैन अहमद ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया मजमूई तौर पर 821 अरब 57 करोड़ रुपए वसूल किए गए। सबसे ज्यादा वसूली कारोबारी अफराद से 24 अरब 31 करोड़ रुपए वसूल किए गए। ब्यूरोक्रेट से 8 अरब रुपए, जबकि सियासतदानों से 47 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। हाउसिंग सोसाइटियों के 99,595 मुतासिरीन को रकम वापस की गई। रुकन PAC नवीद कमर ने कहा कि नैब ने 2021 में 8 अरब रुपए की रिकवरी की, लेकिन खजाने में सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख रुपए जमा कराए। PAC ने हिदायत की कि वो आइंदा इजलास में मजीद तफसीलात सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, हाउसिंग सोसाइटियों के नामों के साथ ब्रीफिंग दी जाए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कोरोना में मुब्तला होने की वजह से इजलास में शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि करप्शन के खात्मे का वादा पहले 90 दिन में पूरा किया गया। अपोजिशन का हर लीडर करप्शन केसेस भुगत रहा है। मौजूदा दौरा हुकूमत में कोई माली स्कैंडल सामने नहीं आया। एहतसाब के वादे से पीछे नहीं हटूंगा। तर्जुमानों के इजलास से वज़ीर आज़म ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, सेहत कार्ड और शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन केसेस पर इजहार ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पहले दिन से कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं। साबका हुकूमतें आज तक मुकमुका करती रही हैं। साबका हुक्मरानों की जायदादों की तफसीलात अवाम के सामने रखें। बिला तफरीक सब पर हाथ डाला है, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कमाया। माफिया पर हाथ डाला तो ये चाहते हैं कि मैं अपना ऑफिस छोड़ दूं। उधर सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत में सिर्फ कीमतों में तरक्की हुई। ATMs ने लूट करके मईशत को तबाह कर दिया। पेट्रोल, बिजली और दवाएं हर चीज महंगी हो गई। हमारे दौर में करप्शन इंडेक्स 11 दर्जे और नून लीग के दौर में 10 दर्जे नीचे आया। PTI के दौर में करप्शन इंडेक्स में ऊपर चला गया। PTI की हुकूमत जब से आई है, बिजली के बिलों में भी तरक्की हो रही है, डॉलर की कीमत में भी तरक्की हो रही है, गैस की कीमत में भी तरक्की हो रही है, दवाओं की कीमत में तरक्की हो रही है। इमरान खान के जो ATMs हैं उन्होंने इस मुल्क की मईशत को लूट कर इस नहज में पहुंचा दिया है।
कि लोग मजबूरी में बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से खुदकुशियां करने में मजबूर हो गए। जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत में आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान का नंबर 138 था। जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत छोड़ी 2013 में, हम चले गए थे 127 पे, यानी कि 11 दर्जे हम बेहतरी हो गई थी हमारी और नीचे आ गए थे। नवाज शरीफ की गई हुकूमत, तो उस वक्त नंबर था 117, मतलब ये कि 10 नंबर मजीद जो है पाकिस्तान बेहतर हो गया। 117 नंबर से जब इनकी हुकूमत आई तो वहां खड़ी थी, पाकिस्तान था वहां पे, और 3 सालों में इन्होंने 140 पे पहुंचा है। कराची में 54 अरब रुपए से जायद डिफॉल्ट, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में हुई है। FIA ने गिरफ्तार मुलजिम मुमताज हसन को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर 5 फरवरी तक जेल भेज दिया। मालियाती फ्रॉड का नेशनल बैंक और हेस्को के साबिक और मौजूदा अफसरान समेत 30 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि केस में नामजद दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार करना है।